Is a power that directly affects the soul. Color is the place where our brain and universe meets. Hi friends, I'm Alia Hussain. And I am Dipanshi Singh and welcome back to your favorite show, Jazz Junior. Jazz Junior. दी, क्या आपको पता है हमारे जीवन पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या महत्व होता है? यस आलिया, रंगों का जादू सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी असर छोड़ता है। आलिया, क्या तुमको कलर्स पसंद है? यस दी, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और कलर्स के साथ साथ तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? खेलना, बुक्स रीड करना। मैं अपने माइंड के साथ अपनी बॉडी को भी फिट रखती हूँ। वाह आलिया, तुम तो बहुत कुछ करती हो। यस दी, ये सब मैंने अपने जूनियर फ्रेंड्स से ही तो सीखा है। तो चले तुम्हारे जूनियर फ्रेंड्स और श्वेता दी के पास उनके एरोबिक वर्ल्ड में। यस दी, चलते हैं और अपने व्यूअर्स को भी लेके चलते हैं और सीखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। लेट्स वेलकम श्वेता दी एंड देयर जूनियर पार्टिसिपेंट्स अन्विता एंड अहाना। Exercise should be regarded as tribute to the heart. Don't you all agree with it? We do. That is why we are here again with full heart and soul. Welcome you all to the fresh episode of Fun with Fitness. Before starting the session, let's welcome our superpower girls Ahana and Anvita. Today our focus will be lower and upper body. Today's warm-up is isolations. First exercise today we will do is high knees with jacks. This is a very good exercise to strengthen your legs and core. Second exercise which we will do today is running man. This is a very good exercise to boost up your stamina. Third exercise which we will do today is shuffle engaging the hands. This works very well on your sides and your legs.
Fourth exercise which we will do today is knee tucks with both hands. This is very good for your overall toning. Let's cool down. And don't forget to breathe in and breathe out when you're doing these exercises. And I recommend to do these exercises in set of 3 to get the best results. Thank you so much for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior. दी, कितनी अच्छी एक्सरसाइजेस थी ना बैक मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। बिल्कुल आलिया, ह्यूमन बॉडीज आर डिजाइंड फॉर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। Yes friends, human bodies are designed for regular physical activities. Thank you so much Shweta Di, Anvita Ahana for motivating us. Jai Junior. दी, मैंने सुना है ध्यान आकर्षित करना और रुचि बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के चमकीले और प्राइमरी कलर्स के खिलौने और बुक्स चुनने चाहिए। बिल्कुल आलिया, इसे ही तो कहते हैं द मैजिक ऑफ कलर्स। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। और क्या तुम्हें पता है कि आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि कलर्स का बच्चों पर किस तरह इन्फ्लुएंस होता है। बड़ा मजा आने वाला है आज के हमारे शो में। आलिया, वैसे मुझे पता चला है कि तुम भी बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती हो। यस दी, बस यूं ही। दी, मैं एनिमे की पिक्चर्स बनाती हूँ और पोर्ट्रेट बनाती हूँ और स्केच बनाती हूँ। वाओ आलिया, यू आर वेरी टैलेंटेड। आलिया, चलो बुला लेते हैं हमारी गेस्ट ऑफ द ईयर हरशिंदर लूम्बा मैम को। She started her career as a painter. She has done her MFA from VI Surikov Moscow State Academy Art Institute at Moscow, Russia. Many of her work are in the collection of private collectors and museum in Russia and Turkey. She has been awarded for her outstanding work done in the field of visual art by Ministry of Culture. And she has been featured in India's first all-women e-magazine. Let's welcome Harshinder Loomba ma'am. Thank you. Thank you for joining us. Thank you for having me. Please Pleasure. have a seat. And also welcome our junior guest Niyati. She is a student of Arvachin Bharti Bhavan Senior Secondary School. She is a musical prodigy known for her extraordinary abilities. She set a remarkable record by playing 15 instruments within 1 minute. She performed the Indian National Anthem and was recorded in India Book of Records. Let's welcome our junior guest Niyati. Hello Niyati. Hello. Thank you for joining us. Please have a seat. Thank you. तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं शॉर्ट फिल्म। आपका बताया हुआ वॉल पेंटिंग है। जो लास्ट में दिखाया था ग्रीन वॉल विद एलिफेंट्स, वो हमारी बनाई हुई पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग। और ये लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आर्ट सेंटर है। वहाँ पे हमने 96 बाय 36 फुट वॉल जो है उसको पेंट किया था। वेरी ब्यूटीफुल।
मैम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार दिल्ली से कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। Friends, can we have the first question, please? Hello ma'am, my name is Tanvi Rai and I want to ask how does color affect the mood and emotions of children? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रंग जो है इनका इम्प्रेशन सिर्फ बच्चों पर ही नहीं एडल्ट्स पर भी होता है, पर हम लोगों को बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वो ग्रोइंग एज में हैं, उनके टेम्परामेंट, उनकी मेंटल हेल्थ, इसके लिए रंगों का महत्व और उनके आसपास कौन से रंग होने चाहिए, उनके कमरे का क्या रंग होना चाहिए, जहाँ वह पढ़ते हैं वो उसका क्या रंग होना चाहिए, इस सब का इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ता है। सो जैसे अगर बच्चा जो है बहुत ही वाइब्रेंट येलो ऑरेंजेस उसके रूम में होंगे तो उसको हमेशा एक पॉजिटिव और अलर्टनेस फील होगी, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बेटर रहेगा। और उसके स्लीपिंग रूम में अगर हम पेस्टल कूल कलर्स जैसे ब्लूज़ ग्रीन्स रखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से सो पाएगा, इसलिए उसका अगला दिन बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। सो इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है और ये बहुत ही प्रभावित करते हैं। Thank you so much ma'am. Can we have our next question please? Hello ma'am, I am Diya Majumdar. My question is, in the ancient times, how were colors created? Well, colors have been created for since prehistoric times. अगर आपको पता हो कि केव्स में किस तरह से पेंटिंग की जाती थी, अर्ली मैन केव्स में पेंट करता था तो ये एक एक्सप्रेशन था और उसने जो भी उसके हाथ में आया इसको ओकर कल कहते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर हम और मिट्टी जो होती है उसके रंग होते हैं ओकर एंड रेड। सो उनको यूज़ करके, कोयले को यूज़ करके काला रंग उन्होंने अपने चित्रित जो हैं केव्स के ऊपर उकेरे। और इजिप्शियन टाइम में कलर्स जो है वो बनाए जाते थे फ्रॉम डिफरेंट स्टोन्स मिनरल्स, उनको पीस के उनको पाउडर बना के उनको एग या किसी बाइंडिंग मटेरियल के साथ जोड़ के दीवारों के ऊपर पेंट किया जाता था। इसको एज कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते थे। जैसे अगर आपने नेफिटिटी का स्टैचू देखा हो तो अपनी आईज़ पे ग्रीन कलर लगाते थे, वो ये भी मिनरल से लिया जाता था। और इंडिगो कलर जो कि इंडिया में बनता था, ये एक पौधे से एक्सट्रैक्ट करते थे केमिकल रिएक्शन से, उसको फर्मेंट करके जो ये कलर निकलता था और ये उस समय यूरोप के देशों में सोने के भाव पे बिकता था। ये जो रंग मैंने भी पहना है ये इंडिगो कलर है, ये इंडिया में ही होता है। Thank you ma'am. मैम मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। जिधर देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बड़ी बड़ी आर्ट पेंटिंग्स बनी रहती हैं। इट हैज़ स्टार्टेड गेनिंग रिकॉग्निशन एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ आर्ट। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्स नहीं होती, कोई उनका बाउंड्री नहीं होता। हाँ, वैंडलिज्म और क्रिएटिविटी में फ़र्क है। अगर दीवारों को आप ख़राब कर रहे हैं, अगर आप उनको सुंदरता से चित्रित कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और जो कि अब शुरू भी हो गया है अपने यहाँ दिल्ली में भी, आप देखेंगे कितना सुंदर दीवारें, जहाँ भी जाएं आप मेट्रोज़ के नीचे या दीवारों पर लोगों ने पेंट किया और वो बहुत अच्छा लगता है, कोई उसको ख़राब नहीं करना चाहता। और पर वैंडलिज़म नहीं कि जैसे नाम उकेर देते हैं। हाँ, शुरुआत इसकी अमेरिका में 70s 80s में हुई थी। इसको ग्राफिटी कहते थे। लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ या अपने अंदर की जो भी उनकी इच्छाएं थी वो किसी की तरफ पहुंचाना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं कि क्या समझते हैं, तो उन्होंने उसको दीवारों के ऊपर लिखना शुरू किया। इसको टैग लाइन्स कहते थे उस समय। सो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं बेंस्की, जिन्होंने इसको एज अ आर्ट फॉर्म प्रेजेंट किया। वो पर मिस्टीरियस है, उनको कोई भी नहीं जानता था कब कहाँ पे जाके वो पेंट कर दें, किसी को पता नहीं होता था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चोर पुलिस का खेल था। पर उन्होंने अपने जो भी उनके दिमाग में आया उन्होंने उसको दिखाया, लोगों को बताया, अपने सारे जो उनके विचार थे सामने रखे आर्ट फॉर्म में विद स्प्रे पेंट। अब ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। जगह जगह पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में भी डिफरेंट कलर्स में, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रमोट करती हैं और हमारे शहर को सुंदर बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं भी इसका पार्ट रह चुकी हूँ। आई एम वेरी प्राउड। नियति, मुझे पता चला है कि आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और सर्टिफिकेट्स भी जीते हैं जो मैं देख रही हूँ। क्या आप हमें दिखा सकती हैं? जी, ये मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है जिसमें मैंने 65 सेकंड्स के अंदर 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए थे हमारे इंडियन नेशनल एंथम पर।
ये मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है जिसमें मैंने 13 मिनट्स में पूरा शिव तांडव स्तोत्र बजाया और गाया ब्लाइंड फोल्डेडली। अच्छा, तो ये शिक्षा आपने कहाँ से ली? ये शिक्षा मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से ली है। वाओ। अच्छा, तो आपकी हमारे पास एक शॉर्ट फिल्म भी है जिसमें आपने 15 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं। क्यों ना हम ये सबको दिखाई दी। दिस वॉज अमेजिंग। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंस्पायरिंग। चलिए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास और लेते हैं उनका अगला क्वेश्चन। हेलो मैम, आई एम आयुषी सिंह और मैं ये पूछना चाहती थी कि कलर्स में मैजिकल पावर्स होती हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इस फील्ड में हॉबीज़ के साथ साथ करियर भी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का करियर आगे स्पेशली आर्ट फील्ड में जाने का कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा वो क्रिएटिविटी मेन स्ट्रीम होने वाली है। हमारी रोज़मर्रा की सहूलतें और जो चीज़ें हम करते हैं देखते हैं, इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम्स एंड ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय रोबोटिक्स। जो एक चीज़ रह जाएगी वो होगी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी, और जो कि एक ह्यूमन माइंड ही उसको आगे लेके जा सकता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। सो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस फील्ड में जाने के लिए अगर आपके बच्चे में वो एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट है उसको और उभारिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन दें। आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा वोकेशंस हैं अब। थैंक यू मैम। नियति, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। नियति, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। आपके हमें वीडियो देख के बड़ा मज़ा आया। आपने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले किए। नियति, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। हमारे शो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर उर्मिला शर्मा। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। मैम, अभी नियति ने इतना कुछ अचीव किया है और आपने उसको इतना सपोर्ट किया है, तो अभी उसकी इतनी जो लाइफ जर्नी है हम आपसे जान सकते हैं? इतना अच्छा एक्सपोजर नियति को देने का आपने मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन की। मैंने उस बच्चे के बारे में जैसे ही सुना, मैं उस बच्चे के लिए दिन रात लगी रही, और मैंने अभी रक्षाबंधन पर उन्हें द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट से भी मिलवाया, अपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमांशु गुप्ता जी से भी मिलवाया, आरएसएस के लोग अभी मेरे पास आए, मैंने उनसे भी मिलवाया। और मैं चाहती हूँ कि सिंगल पेरेंट के साथ जो बच्ची जीवन व्यतीत कर रही है, मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं इसके लिए करती हूँ, हर जगह आगे लेके आती हूँ और इसी तरह आगे लाना चाहती हूँ। ये बच्चे के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ऐसे बच्चे देश में आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू मैम। अगर आप जैसे ही लोग बच्चों को सपोर्ट करते रहें तो बच्चे और भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगी नियति ही नहीं, दूरदर्शन के माध्यम से जितने बच्चे और भी अर्वाचीन से आए या देश विदेश या और भी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें इस तरह का मौका देने का कष्ट करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। थैंक यू मैम। धन्यवाद। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और ले लेते हैं उनका अगला क्वेश्चन। Hello ma'am, I am Avnish Srivastav and I want to ask that how do colors reflect our personality and life experiences? कलर्स
are very important, and every day, as soon as we open our eyes, what we see colors all around us, and we don't even realize it, how they impact our subconscious, not only conscious but subconscious mind as well. किस तरह के रंग हम चूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने घर में हम किस तरह के रंग लगाते हैं, अपने आसपास क्या रखते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है. मेडिसिन फील्ड में भी क्रोमोथेरेपी करके जो है कलर की स्टडीज़ के थ्रू आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी हील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इवन अपने इंडिया में भी. सो कलर्स का इम्पैक्ट हमारी मेंटल स्टेट और हमारी फिज़िकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. आप देखेंगे जैसे राजस्थान के विलेजेस में जाके देखें, वहाँ की औरतें बहुत ही चटकीले भड़कीले फ्लोरोसेंट कलर्स पहनती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पहले जो रेगिस्तान एरिया था बहुत ही सीन, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती है. तो ये रंग जो है ब्राइटनेस लाते हैं आपके जीवन में भी, आपकी मनोस्थिति को स्टेबल रखते हैं. सो कलर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल बिहेवियर और हमारी मनोस्थिति पर बहुत बड़ा असर डालता है. Thank you, ma'am. Friends, can we have the next question, please? Hello ma'am, my name is Aishwarya Pandey from class 12th and I want to ask that what is the origin of street arts and how has it changed over the course of time? ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम खाना पीना सोना कपड़ा इस सब के बाद आगे क्या, आपको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ तरह का मीडियम चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो या आर्ट हो. और आर्ट हम लोग बोलने से पहले ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, हम डूडलिंग शुरू कर देते हैं. सो आर्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अस. कुछ लोग टाइम के साथ उसे छोड़ देते हैं जबकि ये हमारे अंदर इनबिल्ट है. सो अभिव्यक्त किया लोगों ने स्ट्रीट पे जाके, क्योंकि वो अपना कुछ कहना चाहते थे. आजकल का माध्यम डिजिटल माध्यम हो गया है, इंटरनेट आ गया है. सो एवरीबडी इज़ ऑन द नेट और आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप को कितनी क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर और अपने वीडियोस डालते हैं. सो एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ क्रिएटिव पर्सन, उसको जस्ट एक मीडियम चाहिए. सो स्ट्रीट आर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये गैलरीज़ और म्यूज़ियम से निकल के बाहर सड़क पर आ जाता है, एक आम आदमी के पास पहुंच जाता है. वो जाते हुए अगर वो घर से ऑफिस से घर जा रहा है या कहीं भी किसी परेशानी में भी है, एक अच्छा सा सुंदर दीवार पे पेंटिंग देखता है तो उसका मन वहीं पे खुश हो जाता है और वो बहुत ही मूड चेंज हो जाता है उसका. बिल्कुल ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, प्लस सुंदरता तो बढ़ाता ही है शहर की. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अगर आप जैसे ही लोग बच्चों को सपोर्ट करते रहें तो बच्चे और भी आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. D. In classroom and with toys, we can make children feel happier, be better and more creative. Yes, Alia, very true. Understanding how colors impact and helps in creating spaces and materials that supports their emotional development, learning and imagination. Yes, D. By using color wisely, we can enhance children's experiences. Yes, Alia, I understand your point, and making their world more vibrant and brighter. आलिया, क्या तुम पीकू से मिली हो? Yes, दी पीकू पर बहुत परेशान लग रही थी. अच्छा, पर पीकू क्यों परेशान है? दी चलो पीकू के पास ही जाके पूछ लेते हैं वो क्यों परेशान है. हाँ हाँ आलिया, चलो चलते हैं और पूछ लेते हैं उसकी क्या परेशानी है. Yes, दी लेट्स गो. पीकू और दी, पैसे और मोबाइल तो चोरी होते सुना था, आजकल तो लोग पानी भी चोरी कर रहे हैं. क्या हुआ? परेशान क्यों हो? अरे पीकू कुछ नहीं, हर एक ने घर पर टूलू पंप लगवाया हुआ है जिससे उनके घर पर तो पानी भर जाता है लेकिन हम जैसों के घर तक पानी ही नहीं पहुंचता. ये तो बड़ी समस्या है. गर्मियाँ शुरू होते ही ये समस्या बढ़ जाती है. तो तुम अदिति या उसके दोस्तों की तरह ऐसी तरकीब आजमाओ जिससे चोरों को उनकी नानी याद आ जाए. अदिति की तरकीब? वो कैसे? चलो बताती हूँ. कई रोज से देवेश नजर नहीं आ रहा है. हाँ यार,
ना वो मॉर्निंग वॉक पर आ रहा है, ना ही खेलने आ रहा है। कल मुझे बाजार में मिला था, बता रहा था कि उनके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ पानी की वजह से वो नहीं आ पा रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो उसके घर चलकर देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मोहल्ला तो पानी के लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है। अरे तुम लोग सुबह सुबह इधर कैसे? तुमसे मिलने आए थे। हाँ तो आओ, घर चलो, चाय पानी पीते हैं। पानी? ना बाबा ना। अरे हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं आता है। लेकिन यहाँ से सामने वाले इलाके में तो खूब सारा पानी आ रहा है। पता नहीं कैसे, पहले लोगों के यहाँ पानी नहीं आता था, लेकिन अब ये लोग खूब पानी बहाते हैं और हम लोगों तक पानी पहुँचता ही नहीं। अच्छा, शायद यहाँ की वाटर पाइपलाइन कम या बंद कर दी गई है। कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। कल हम लोग इसका पता लगा लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पापा के जरिए जल विभाग वाले अंकल से पता लगवाया है। देवेश के मोहल्ले में तो रोज पानी की सप्लाई होती है। तो फिर ये पानी जाता कहाँ है? चलो इस बात का पता लगाते हैं। कुछ समझे? अब सारा माजरा समझ में आया। अब क्या किया जाए? सुनो दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। सभी लोग इधर आओ। आज आप लोगों के यहाँ पानी आ रहा है। हाँ बेटा, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आप लोगों के पानी का चोर पकड़ा गया। कैसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहेलियां मत बुझाओ, जरा खुलकर बताओ। क्या आप कल्लू ठेकेदार को जानते हैं? हाँ, ये तो खुद को जल विभाग का अधिकारी बताता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिकारी नहीं, ये चोर है। दरअसल बाकी जगहों की तरह यहाँ से भी सरकार के आगे से पानी की सप्लाई होती है। हाँ, और कल्लू ठेकेदार ने अपने यहाँ आने वाली वाटर पाइपलाइन को काटकर दूसरी बस्ती में जोड़ रखा था। इसकी वजह से आपके हिस्से का पानी भी उन लोगों तक पहुंचाया जाता था और ये भाई साहब इस पानी को सप्लाई करने के लिए उन लोगों से मोटे रकम ऐड रहे थे। कल अदिति और उसके दोस्तों ने काम करते हुए इन लोगों को देख लिया और जाकर जल विभाग के अधिकारी और पुलिस को बता दिया। ये लोग बड़ी चालाकी से पानी जाने के बाद पाइपलाइन को वापस जोड़ देते थे। आज जब ये ऐसा करने गए तो पहले से मौजूद अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया। बच्चों की समझदारी की वजह से आप लोगों को पानी मिल गया और हमें पानी के ये चोर। देखा बच्चों, कैसे अदिति और उसके दोस्तों की सूझबूझ ने पानी के चोरों को पकड़ लिया। अब आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर रखना और पानी को बचाने की मुहिम में शामिल हो जाएं। पानी चोरी करने की गर तुमने मन में ठानी तो फिर प्यारे कर लो जेल जाने की तैयारी। दी, देखा आपने, अदिति ने कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल आलिया, अदिति की तरह हम सबको भी ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए। दी, ले लेता है इस वीक का ईमेल। Yes, Alia. This email is from Samkit Jain. We are glad to hear from you, and you can watch all our videos on YouTube, Just Junior DD National. Thank you so much for sending this beautiful email to us. Thank you so much. और आप हमें आगे भी ऐसे ईमेल भेजते रहे और हमें मोटिवेट करते रहे. Now it's time to take your leave, and we'll see you next week at the same time with different topics on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और आप अपने फीडबैक के लिए लॉग इन कर सकते हैं dd@gmail.com पर और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें. Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.